children, how are you all? I hope you all are good. So let's start a new chapter today, that is our aims, rights and duties. After hundreds of years of slavery and the British rule, India became free on 15th August 1947. After attaining independence, the need for a constitution was felt. To frame the constitution, a constituent assembly was formed. The Republic Day Parade. तो बच्चों, बहुत सालों की गुलामी के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली थी और इंडिपेंडेंस के बाद ये रियलाइज़ हुआ कि कॉन्स्टिट्यूएंट की भी ज़रूरत है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म हुई थी. अंडर द चेयरमैनशिप of Dr. Rajendra Prasad, our constitution was adopted on 26th January 1950. To mark this occasion, we celebrate 26th January every year as Republic Day. Dr. Rajendra Prasad. बच्चों, under the chairmanship of Dr. Rajendra Prasad, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट हुआ था 26 जनवरी को 1950 में और इस डेट को मार्क करने के लिए हर साल 26 जनवरी को रिपब्लिक डे सेलिब्रेट होता है. गोल्स. द रिपब्लिक डे परेड. द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज अ रिटन डॉक्यूमेंट. इट लेज डाउन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट. द प्रियम्बल इज एन इंट्रोडक्शन टू द कॉन्स्टिट्यूशन. इट लेज द एम्स एंड पर्पस of the Constitution. The preamble to our Constitution lays emphasis on three goals, namely democracy, socialism and secularism. तो बच्चों, goals क्या हैं? हमारे Constitution में एक preamble है जिसमें हमारे three goals mentioned हैं, democracy, socialism and secularism. आइए अपने preamble को पढ़ते हैं. We, the people of India, having solemnly resolved to constitute India into a sovereign socialist secular democratic republic and to secure all its citizens justice, social, economic and political liberty of thought, expression, belief, faith and worship, equality of status and of opportunity, and to promote among them all fraternity, assuring the dignity of the individual and the unity and integrity of the nation. In our Constituent Assembly, this 26th day of November 1949, do hereby adopt, enact and give to ourselves this Constitution. तो बच्चों, ये हमारा प्रियम्बल है. हमारे प्रियम्बल में रिपब्लिक, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी के बारे में सब कुछ मेंशन्ड है. प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया. द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया allows the citizens of India to elect their representatives to form a government. This is called democracy. Freedom of equality are essential for the success of democracy. तो बच्चों, जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है वो उसके सिटीजन्स को अलाउ करता है कि वो अपना रिप्रेजेंटेटिव खुद चुने. इसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं और डेमोक्रेसी तभी सक्सेसफुल हो सकती है जब सभी सिटीजन्स को फ्रीडम ऑफ इक्वालिटी हो. द कॉन्स्टिट्यूशन स्टेट्स दैट द पीपल ऑफ इंडिया विल हैव equal rights and equal opportunities to progress. This is called socialism. No difference will be made between people. बच्चों, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ये भी कहता है कि इंडिया के सभी लोगों को इक्वल राइट्स और इक्वल अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी. इसे हम सोशलिज्म कहते हैं. कोई भी डिफरेंस नहीं होगा किसी भी इंसान में. ऑल्सो अकॉर्डिंग टू इट, नो डिस्क्रिमिनेशन विल बी मेड on the basis of religion or caste. Everyone is free to follow any religion. This is called secularism. The state treats all religions equal. It does not favor any religion. Thus, democracy, socialism and secularism are our national goals. तो बच्चों, यहाँ तक कि डिस्क्रिमिनेशन का भी कोई सवाल नहीं उठता, चाहे वो रिलीजन हो चाहे कास्ट हो.
इसे हम सेक्युलरिज्म कहते हैं, और डेमोक्रेसी, सोशलिज्म एंड सेक्युलरिज्म हमारी कंट्री के नेशनल गोल्स हैं। राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया हैज़ प्रोवाइडेड एवरी सिटीजन certain rights. These are called fundamental rights. No government can deny him these rights. Some of them are right to equality, everybody is equal before law. Right to freedom, everybody can express his views freely. Right against exploitation, no one has a right to exploit others. Right to freedom of religion, everybody can preach and follow religion of his choice. Right to culture and education, everyone can take steps to preserve their cultural and educational rights. Right to constitutional remedies, our fundamental rights cannot be restricted or taken away. In order to protect our rights, we can seek the help of courts. But during emergency, the fundamental rights are suspended. तो बच्चों, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ राइट्स भी हैं। सभी लोगों को इक्वल राइट्स दिए जाते हैं, जिन्हें हम फंडामेंटल राइट्स बोलते हैं। उसमें राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम, राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू कल्चर एंड एजुकेशन एंड कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज जैसे राइट्स मेंशन्ड हैं, और इन राइट्स का सभी को मिलना इम्पॉर्टेंट है। बस अगर कोई इमरजेंसी का केस हो तब ये फंडामेंटल राइट्स कैंसिल हो सकते हैं, वरना ये राइट्स सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं। वी शुड कीप इन माइंड दैट वाइल एंजॉइंग आवर राइट्स वी शुड नॉट इंटरफेयर विद द राइट्स ऑफ अदर्स। द राइट्स एंड ड्यूटीज़ आर क्लोजली रिलेटेड टू ईच अदर। बच्चों, हमें हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हम खुद के राइट्स एंजॉय करते हुए दूसरे के राइट्स में इंटरफेयर ना करें। राइट्स और ड्यूटीज़ कोरिलेटेड हैं। ड्यूटीज़, एज वी आर गिवन राइट्स, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ फॉर एवरी सिटीजन ऑफ इंडिया. सम ऑफ देम आर respect the national flag and national anthem, follow the ideals given in the constitution, protect and improve our natural environment, protect the monuments and public property, work for the unity of our country. तो बच्चों, राइट्स के साथ हमारी कुछ ड्यूटीज़ भी हैं जो हमें फुलफ़िल करनी है, जैसे कि हमारे नेशनल फ्लैग की एंड नेशनल एंथम की हमेशा रिस्पेक्ट करनी है। जो भी आइडल्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में गिवन है उन्हें फॉलो करना है। हमें अपने नेचुरल एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है एंड उसे इम्प्रूव करने के लिए स्टेप्स लेने हैं। मॉन्यूमेंट्स एंड पब्लिक प्रॉपर्टी का ध्यान रखना है और दुनिया की और सभी लोगों की यूनिटी बनाए रखनी है। कोऑपरेट विद द गवर्नमेंट इन टाइम्स ऑफ डिफ़िकल्टी, ट्रीट अदर्स एज आर इक्वल्स। तो बच्चों, अगर कुछ डिफ़िकल्टी हो तो हमें गवर्नमेंट के साथ कोऑपरेट करना चाहिए और सभी को इक्वली ट्रीट करना चाहिए। डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, आवर कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर अ नंबर of directive principles of state policy. The directive principles are the guidelines for the government. The main aim of these principles is to develop a welfare state. Some of these principles are free and compulsory education for all the children up to the age of 14. Special laws for the upliftment of scheduled castes, scheduled tribes and other backward and weaker sections of the society. Improvement of public health, equal pay for equal work, a fair distribution of wealth, improvements in agriculture and the condition of the laborers, adequate power to village panchayats. तो बच्चों, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उनके भी कुछ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी हैं जो उन्हें फॉलो करने हैं, जैसे कि फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन फॉर किड्स अप टू 14 ईयर्स ऑफ एज। स्पेशल लॉज बनाए गए हैं शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर बैकवर्ड एंड वीकर सेक्शंस ऑफ आवर सोसाइटी के लिए। इम्प्रूवमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, सभी को सेम काम के लिए इक्वल पे देना। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, एडिक्वेट पावर
to village panchayats. These directive principles are only guidelines for the state. If they are violated, citizens cannot go to court for redress. Our constitution has been drafted by highly learned persons from all walks of life. It has looked into every aspect of our life. We must respect and follow it. तो बच्चों, ये जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं, ये गाइडलाइंस सिर्फ स्टेट के लिए हैं. अगर इन्हें वायलेट किया तो कोई भी सिटीजन इन्हें रीड्रेस कराने के लिए कोर्ट नहीं जा सकते. हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम इन सभी प्रिंसिपल्स को फॉलो करें एंड इनकी रिस्पेक्ट करें. नॉलेज बियॉन्ड. What can you do for the welfare of the region where you reside? The directive principles of state policy give the real structure of welfare state. This is not new in Indian context. Ashoka, the famous Mauryan ruler, laid the foundation of public welfare in our country through plantation of trees to save the environment, treatment for ill animals, digging wells, developing orchards and other welfare works. What can you do for the welfare of the region where you reside? तो बच्चों, अशोका जो एक मौर्यन रूलर थे, उन्होंने एक फाउंडेशन बनाई थी पब्लिक वेलफेयर के लिए, जिसमें उन्होंने प्लांटेशन ऑफ ट्रीज टू सेव द एनवायरनमेंट, ट्रीटमेंट फॉर इल एनिमल्स, डिगिंग वेल्स एंड अदर वेलफेयर वर्क्स पे काम किया था. आप अपने आसपास के रीजन के वेलफेयर के लिए क्या काम कर सकते हैं? थिंक एंड आंसर. बच्चों, इन क्वेश्चंस का आंसर आप खुद से करेंगे. सो दिस ब्रिंग्स अस टू द एंड ऑफ दिस चैप्टर. आई होप आप सभी को ये चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा और आप इसकी एक्सरसाइज की प्रैक्टिस खुद से करेंगे.